Hello friends, welcome back to your own YouTube channel Unacademy Gate CCH. So I hope everyone is doing great और बढ़िया से तुम लोग इस चैनल को यूटिलाइज कर रहे हो और नॉलेज को गेन करते हुए चल रहे हो. So welcome to this short video and welcome to Unacademy. I am Chetan Saxena and I have secured best gate rank of 55 and 301 and I am an expert in gate ESE and all the technical exams related to civil engineering and I have pursued my masters from IIT Roorkee in structural engineering and I have secured more than 98.2 percentile in GATE 4 times consecutively. That means I have secured a top rank each time with a best GATE score of 902 and teaching experience of more than 3 years. Subjects, these are the subjects in which I am very comfortable. Okay, so here in this video we are going to discuss some great iconic questions of building materials which are generally asked in interviews. Okay, so this is my code which is which you all can use. This is my code CS10 which you all can use in order to take subscription on Unacademy or attend any amount of free live classes and free test, or you can also participate in the combat session which is held every fortnight. And in plus subscription you are going to get live classes, crash courses, weekly test. Doubt solving is also there at every fourth day. Batches are also there in English and Hindi, and rank improvement batches are also there. These are the facilities which you will be getting in plus. And in Iconic, all the facilities which are incorporated in the plus are also available, and also additionally you will be getting a personal coach. This personal coach will enhance your learning and will guide you one-on-one so that there is no barrier in your preparation. And this coach will plan your studies. He will customize your study plan and he will help you in tracking your performance. Study booster sessions will also be there. Personalized test analysis will also be there, and you will also get a preparatory study material which is curated by top educators of Unacademy. So there is no need to go anywhere offline and you can avail all the facilities at home and enjoy the learning at Unacademy. If you talk about the fees, 1 year fees of plus is somewhere around 27,225 after you apply my code CS10. If you won't apply this code, then you have to pay additional fees. So do apply the code so you don't pay additional fees. Okay. 1.5 year fees is somewhere around 34,650 and 2 year fees is somewhere around 39,600 after applying my code, and you can also avail these courses in easy EMI installments which are also no cost EMI. Okay. And if you talk about Iconic subscription, 1 year Iconic subscription is somewhere around 45,225 after applying the code, and 2 year Iconic fees is 66,600 rupees. Apart from this, you can follow me on Unacademy app. You can download the Unacademy Learning app. You can follow me there. Okay, you can download the app and follow me in GATE ESE category. You can switch to the goal GATE ESE category and follow me there. Okay, and in this app, I take great special classes and you can learn from me there. So, welcome to this short video. In this short video, we are going to discuss some of the very important building material interview questions. Okay, so as you all can see here, we are going to discuss some of the very important building material interview questions. So let us start without wasting any further time. So you all can also comment after seeing the video. You can also comment the answers below if you know it. Okay, so the very first question we have is specific gravity for most of the building stones. As you all know, सबको शायद पता भी हो कि stones जो हमारे हैं वो बहुत ही यूनिक मटेरियल है जिससे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हुए आए हैं काफी पुराने समय से. So stones have already been used from past time since time is immemorial. So किसी को अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बिल्डिंग स्टोन्स की पता हो, ये एक बहुत ही कॉमन बिल्डिंग मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, तो तुम लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में आफ्टर दिस वीडियो. ओके, सो चलो हम लोग आंसर रिवील करते हैं. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन्स इज जनरली इन द रेंज ऑफ 2.5 to 3. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द करेक्ट आंसर, 2.5 to 3. ओके, अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, कम होती है ज्यादा होती है, अगर कम होती है इसका मतलब उसके अंदर पोर्स बहुत ज्यादा है और वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वो अच्छा स्टोन नहीं होगा फिर. ठीक है, तो 2.7 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू
which generally stone possess as a specific gravity. Okay, so now the next question. This is also very important question which is generally asked in interviews when it comes to building materials. What is the initial setting time? As you all can see here, what is the initial setting time of cement for asbestos cement products generally? And initial setting time should not be less than, can anyone tell me? So initial setting time of asbestos cement products should not be less than, the correct answer is, can anyone tell me? Comment down below in the comment box. It is somewhere in the range of 30 minutes. Like let us assume कि जब हमारा सीमेंट इनिशियली सेट हुआ तो वो 40 मिनट्स आया, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम. ओके, इनिशियल सेटिंग टाइम 40 मिनट्स आया. सो 40 मिनट्स इज नॉट लेस देन 30 मिनट्स, देन इट्स ओके. इनिशियल सेटिंग टाइम जो भी हमारा होगा वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए. ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हो गया देन इट्स नो प्रॉब्लम, but it should not be less than 30 minutes. Okay, so 40 minutes is okay, 50 minutes is also okay. Okay sir, now next important question. Let us check कि तुम लोग को कितने क्वेश्चंस आते हैं. ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. एज ऑफ ट्री कैन बी एग्जामिन्ड बाय. ट्री की जो एज है वो हम लोग कैसे एग्जामिन कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? ट्री की एज को तुम लोग कैसे एग्जामिन कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? बताओ भाई. So we have cambial layer, we have medullary layers, we have hardwood. These are the different parts of the cross section of a tree. कई सारे parts होते हैं हमारे tree के cross section में. तो सही बता रहे हो, annual rings. Annual rings is the correct answer. I think most of the candidates must be getting it right. तो annual ring से क्या होता है, एज हमारी पता चल जाती है. annual ring से एज पता चल जाती है क्योंकि हर ईयर में एक रिंग और जुड़ जाती है. every year there is growth of one ring. So let us assume अगर मान लो हमारे पास 30 रिंग्स हैं, इसका मतलब उसकी एज 30 इयर्स है. तो annual rings helps us to find the age of the tree. Next question we have is percentage of silica in good brick earth. देखो सबको ये पता होना चाहिए, जब हम लोग ब्रिक बनाते हैं तो ब्रिक बनता है मिट्टी से, अर्थ मटेरियल से. ठीक है, हम लोग क्ले को डिग करके अर्थ से निकालते हैं और उसको हम लोग कई सारे प्रोसेस थ्रू फॉलो कराते हैं और फिर हमारा ब्रिक बनता है आफ्टर इट. ओके, सो जो ब्रिक अर्थ हम लोग यूज करते हैं, ब्रिक को बनाने में जो मिट्टी हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सिलिका होता है उसमें. वी हैव सिलिका, वी हैव एल्यूमिना, ओके, वी हैव लाइम, we have iron oxide, and we have magnesia. So too many oxides are there in that clay material, in that earth, and सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है एंड सबका कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन है जो होगा तो हमारा ब्रिक अच्छी प्रॉपर्टीज देगा. सो सिलिका इज इन द रेंज ऑफ समवेयर अराउंड 60%. ओके, समवेयर अराउंड 60%. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं 50 to 60% इज करेक्ट आंसर. ओके, सिलिका इस रेंज में रहता है तो सी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट हियर. Now the next question. Proper amount of entrained air in concrete results in. So air entrainment in concrete will result in what? Better workability. Yes, very obvious. Workability is enhanced. Lubrication अच्छा हो जाएगा और compaction करने में, placing करने में, mixing करने में, हर एक चीज में बड़ी आसानी हो जाएगी. Better resistance to freezing thawing. Yes, absolutely. तुम कह सकते हो अगर एक तरह से air content बढ़ रहा है तो freezing thawing resistance भी हमारी बढ़ेगी. Freezing thawing is nothing, freezing and melting. ओके, सो जहां भी कभी टेम्परेचर बहुत लो होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है कोल्ड कंट्रीज वगैरह में, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, एयर एंट्रेनमेंट कर देते हैं. एल्यूमिनियम पाउडर्स भी ऐड, हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर मिलाते हैं, विंसॉल रेजिन, ओके, एनिमल रेजिन्स, मेनी टाइप्स ऑफ ऑयल, डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेनिंग एजेंट्स आर देयर. कई सारे एयर एंट्रेनिंग एजेंट हैं जिसको हम लोग ऐड करके अपने कंक्रीट की कोल्ड कंट्रीज में फ्रीजिंग थॉइंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं. तो जब भी हमारा कंक्रीट फ्रॉस्ट एक्शन को एक्सपोज्ड है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी अगर हम लोग उसके अंदर एयर एंट्रेनमेंट कर देंगे. ठीक है, और बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो इसके अपोजिट ही हैं, तो 1 और 2 एकदम यहाँ पे सही हो जाएगा. ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. एडवांटेज ऑफ क्लैंप कंपेयर टू अ किल फॉर बर्निंग ब्रिक्स. देखो ब्रिक्स को हम लोग बर्न करते हैं क्लैंप में और किल में. दो हमारे पास ऑप्शंस हैं इंडिया में, एक क्लैंप और एक किल. ठीक है, ऑब्वियसली बेटर हमारा किल होता है. अगर तुम लोगों को पढ़ा हो, तुमने पता हो, क्लैंप थोड़ा सा सस्ता रहता है, इट इज चीप, बट इसमें बड़ी प्रॉब्लम है सर. ये चीप होता है लेकिन इसमें देखिए इसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा. ठीक है,
टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें लगभग 6 मंथ्स लग जाते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ लग जाते हैं ईंट को अच्छे से पकने में, और वी कैन से ईंट को अच्छे से बर्न होने में। तो लेस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं रहता ये। इट गिव्स मोर आउटपुट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट क्लास ब्रिक तो बहुत अच्छे ब्रिक होते हैं, और क्लैम्प में क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म बर्निंग होती है तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हमें ज़्यादा नहीं मिलते हैं। इनिशियल कॉस्ट इसकी कम होती है, बिल्कुल सही बात है, इनिशियल कॉस्ट इसकी कम होती है, ये सही है सर। किल के अंदर हमको बहुत सारा पूरा सेटअप करना पड़ता है, पूरे भट्टे हम लोग को अच्छे से सेटअप करने पड़ते हैं, और इनिशियल कॉस्ट उसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जब हमको ब्रिक्स स्मॉल नंबर में चाहिए होता है तब हम लोग सूटेबल होता है क्लैम्प, और किल हम लोग तब यूज करते हैं जब लार्ज नंबर ब्रिक चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। क्लैम्प हम लोग टेम्परेरी जुगाड़ करते हैं, टेम्परेरी जुगाड़, है ना। तो इनिशियल कॉस्ट कम है, बाकी सारी चीजें गलत है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को इस सेशन में काफी बढ़िया से इंटरव्यू क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे। ओके, नाउ वी आर एट अ लास्ट क्वेश्चन। ये सब लोग बताएंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में तुमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कि सीमेंट, वैसे सबको पता होगा कि हमारा जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसके अंदर हमारे मेन 4 वो कंपाउंड होते हैं, C3S, C2S, C3A एंड C4AF। दीज आर द 4 कंपाउंड्स। ओके, सो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सीमेंट यहाँ पे है जिसके अंदर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट है, मतलब C2S है। डाई मीन्स 2, कैल्शियम मीन्स C एंड सिलिकेट मीन्स S। ओके, SiO2, कैल्शियम मीन्स CaO, here calcium is referring to CaO। ओके, सो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है। हम लोग को शायद इसका आंसर पता हो आप लोग को, लो हीट सीमेंट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। लो हीट सीमेंट के अंदर सर क्या होता है, हमारे C2S की जो परसेंटेज है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं, और बाकी C3S और C3 का परसेंटेज कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो जो लोग ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं उन कंपाउंड्स को, उन वो कंपाउंड्स को हम लोग कम कर देते हैं, और जो हीट कम प्रोड्यूस करते हैं उनको बढ़ा देते हैं, तभी इसका नाम लिखा है क्या, लो हीट सीमेंट। सो आई होप सब लोग ने सेशन को एंजॉय किया है, और तुम लोग को इंटरव्यू क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे, और हम लोग और भी ऐसी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे बढ़िया से। टिल देन, इट्स मी चेतन सक्सेना साइनिंग ऑफ दिस सेशन, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से कुछ और बिल्डिंग मटेरियल इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।